اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام جعفر الصادق علیہ السلام شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون لحزننا۔ میرے محترم مخاطبین، سامعین، ناظرین، عزاداران سید الشہداء، میں سب سے پہلے تو آپ سب کے لیے یہ آرزو کرتا ہوں، یہ تمنا کرتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم سن 1442 ہجری کے محرم میں آپ کو سچے عزادار کے طور پہ عزاداری کرنے کا سلیقہ اور توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے عزاداری رسم یا ذمہ داری۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے، یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ عزاداری رسم ہے یا ذمہ داری ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اور بہت سے لوگوں کے مقابلے میں میرا اپنا ذاتی نظریہ، میرا اپنا جو اوپینین ہے وہ تھوڑا مختلف ہو، مگر میں اس کے لیے دلیلیں رکھتا ہوں۔ عزاداری رسم بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے۔ ہم ایکسٹریمزم کا شکار ہو کر کے، شدت اور افراط و تفرید کا شکار ہو کر کے ایک طرف جھکنا اور اپنے ذہن کو لے جانا صحیح نہیں سمجھتے۔ ایکسٹریمزم اور اس طریقے کی فکر کا شکار ہونا یہ مناسب نہیں ہے کسی بھی مرحلے میں۔ یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا، ممکن ہے بعض لوگ یہ کہہ دیں کہ عزاداری رسم نہیں ہے، مگر میں ذرا سا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو پیش کرنا چاہتا ہوں، الگ نظریہ رکھتا ہوں، اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ہم سے موافقت بھی کریں۔ عزاداری رسم بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے۔ رسم اور ذمہ داری یہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ آپ سے عرض کروں، خوشی ہو یا غم، یہ دونوں بہت حد تک کلچر اینڈ ریلیجن دونوں سے بہت نزدیک ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ خوشی میں بھی مذہب ہے اور غم میں بھی مذہب ہے، خوشی میں بھی کلچر ہے، غم میں بھی کلچر ہے۔ جو انسان خوشی اور غم مناتا ہے نا، منانے کا طریقہ کلچرل اینڈ ریلیجیس ہوتا ہے۔ اب ہم یہ کہیں گے ہر ملک میں خوشی منانے کا بھی انداز الگ ہوتا ہے، ہر خطے میں غم منانے کا انداز اور طریقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ لہٰذا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ خوشی اور غم منانے میں جو لوکل کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں، طریقے ہیں، رسم و رواج ہیں، وہ عزاداری میں شامل ہوتے ہیں، خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ عزاداری وہاں کے کلچر کو اڈاپٹ کرتی ہے، کلچر عزاداری کو یا خوشی اور غم کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں، مذہب اور ثقافت، مذہب اور تہذیب۔ ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے، عزاداری جہاں ہمارے لیے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم رخ رکھتی ہے اور ہمیں امام حسین کی عزاداری کو ذمہ داری سمجھ کر کے انجام دینا ہے، وہیں یہ بھی عرض کریں گے کہ بہت سی ایسی رسمیں ہیں جو امام حسین کی عزاداری کو الگ الگ ملکوں میں ایک خاص عنوان عطا کرتی ہیں، ایک خاص اسٹرکچر اور ڈھانچہ عطا کرتی ہیں، اور اس اسٹرکچر میں اگر عزاداری منائی جاتی ہے، عزاداری کی جاتی ہے، تو عزاداری میں درد بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا رسموں کی مخالفت ہم نہیں کرتے۔ ہاں، یہ یاد رہے کہ وہ رسم جو شریعت سے ٹکرا جائے، شریعت محمدی سے ٹکرا جائے، جس شریعت کی بقا کے لیے حسین نے قربانی دی تھی، وہ رسم عزاداری میں نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ عزاداری کو ہم اپنا فریضہ سمجھ کے انجام دیں یا فارمیلٹیز سمجھ کے انجام دیں،
तो यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि रस्म यानी फॉर्मेलिटी का नाम अज़ादारी नहीं है, बल्कि फरीज़ा यानी ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम अज़ादारी है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं थोड़ी देर तसलसल से कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, शियतुना खुलिक़ू मिन फ़ाज़िल तीनतिना, हमारे शिया हमारी फ़ाज़िल तीनत से खल्क़ हुए हैं, जिससे हम बनाए गए हैं, उसी के इजाफ़ी तीनत से, तीनत की वजाहत अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारे शिया पैदा किए गए हैं। यफ़रहूना बिफ़रहिना व यहज़नूना लिहुज़निना, हमारे शिया वो हैं कि जो हमारी खुशी में खुश होते हैं और हमारे गम में गमज़दा होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हुसैन इब्न अली की जो आज़ादारी है, जो हुसैन का गम है, ये अहले बैत का गम है। आज़ादारी हुसैन की है, अहले बैत की है। लिहाजा हम इमाम सादिक़ की हदीस के एतबार से अगर शिया हैं तो हम खुश होते हैं हुसैन की खुशी में, अहले बैत की खुशी में, गमज़दा होते हैं अहले बैत के गम में। अब मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, क्योंकि इमाम हुसैन की शहादत पर रसूल अकरम और रसूल का पूरा कुनबा गमज़दा है, अज़ादार है, लिहाजा अज़ादारी मनाते हैं, अज़ादारी करते हैं। और ये अज़ादारी एक रस्म और फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं करते हैं कि हमको बुज़ुर्गों से जो चीज़ मिलती चली आ रही है, हम उसको बुज़ुर्गों की वजह से अपने ख़ानदान के एक फ़रहंग कल्चर के तौर पे उसे आगे लेके चलते हैं। नहीं, यकीनन बुज़ुर्गों ने जो हम तक ये एक अजीम नेमत मुंतकिल की है, ये काबिल कदरदानी है। हम अपने बुज़ुर्गों की कदरदानी करते हैं, उनका शुक्र अदा करते हैं और साथ में खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ऐसे बुज़ुर्गों के आगोश में परवान चढ़े कि आज़ादारी को और इस कल्चर को, जो मजहबी कल्चर था, हम तक मुंतकिल किया। लेकिन याद रखिएगा, आज़ादारी को सिर्फ कल्चर, सिर्फ रस्म समझ करके अंजाम नहीं देते, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझ के। अब जब आज़ादारी को जिम्मेदारी समझ के अंजाम देते हैं तो आज़ादारी गम मनाने का नाम है और खुशी से मुख्तलिफ तरीके से अंजाम दिए जाने वाले उमूर को आज़ादारी कहते हैं। अब हुसैन की आज़ादारी में इंसान गमज़दा होगा तो याद रखिएगा, गम का तरीका और होता है, खुशी मनाने का तरीका और होता है। जुलूस जब निकाले हम, तो जुलूसों में इस साल तो अक्सर जगहों पे जुलूस नहीं निकल पाएंगे, लेकिन जब भी जुलूस निकालें, जब भी मजलिस बपा करें, जो लोग फिजिकली प्रोग्राम कर पा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, जो ज़माना चल रहा है उस ज़माने में, तो वो लोग इस चीज़ का ख्याल रखें कि जुलूस और आज़ादारी पिकनिक का नाम नहीं है। हमारे शहरों में, हमारे मुल्क में, बाहर भी मैंने देखा है, बहुत से मुल्कों में ऐसा होता है। आज़ादारी रोड पर हम जुलूस लेके जाते हैं, मगर दूसरी कौमें जब हमें देखती हैं तो हमारे लिबास तो काले होते हैं, लेकिन अंदाज कई बार ऐसा हो जाता है कि देखने वाला हमें गमज़दा नहीं कह पाता है। हम सैंडविचें बांटते रहते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक पिलाते रहते हैं, हम दूसरी ग़िज़ाएँ तकसीम करते रहते हैं। क्या किसी के घर में मौत हो जाती है तो वो इसी तरीके से अपने बाप के, अपनी माँ के, खुदा न खास्ता अपने घर वाले के जनाजे को लेकर के जाता है कब्रिस्तान में। हमारे कांधों पे हुसैन का जुलूस हो, हुसैन का ताबूत होता है। ताबूत इस ख्याल से निकालते हैं कि मौला हम करबला में होते तो फिर आपको इस तरीके से हम आपके जनाजे को बेगोरो कफन पड़े न रहने देते। हम ताबूत उठा रहे हैं मौला, आपके ताबूत को उठा रहे हैं, इस तरीके से उठा रहे हैं ताकि हम अपने हक को अदा कर सकें। तो जब ताबूत हुसैन के जनाजे के न उठ पाने की कसक में उठाते हैं तो याद रखिएगा, जब जनाजा लेके चलते हैं तो खाने पीने बांटते हुए नहीं चलते, पिकनिक मनाते हुए नहीं चलते, गमज़दा होकर चलते हैं। अंजुमनबाजी नहीं होना चाहिए। अंजुमनबाजी में अगर आज़ादारी कर रहे हैं, जिम्मेदारी समझ के कर रहे हैं, तो हुसैनी पैगाम को मुंतकिल करना है। सदारत, सेक्रेटरीशिप, प्रेसिडेंटशिप, ये होदा वो होदा, अंजुमनबाजी, मेरी अंजुमन ज़्यादा अच्छी, तुम्हारी अंजुमन ज़्यादा अच्छी, ये जिम्मेदारी नहीं है, ये रस्म हो जाएगी। ऐसी रस्म अगर करेंगे तो आज़ादारी का हक अदा नहीं होगा। एक दूसरे से पॉजिटिव कंपटीशन करना काम को बेहतर से बेहतर का अंजाम देने के लिए बुरा नहीं है, लेकिन दूसरे को गिरा करके आगे बढ़ना और अपनी तारीफ करवाना, ये आज़ादारी नहीं कहलाएगा। लिहाजा अंजुमनबाजी में इस चीज़ का ख्याल रखें कि जिसे अंजुमनबाजी हम कह रहे हैं उससे परहेज़ करें।
अंजुमन हो तो हुसैन की अज़दारी के फ़रोग के लिए हो, दूसरों के कंपटीशन के लिए और अपने नाम नमूद के लिए ना हो। इसी तरीके से मैं एक बात और कहना चाहूँगा अपने सिर्फ से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से, बिलखुसूस उन लोगों से कि जो मिंबरों पे ज़ाकिर हुसैन के तौर पे आ जाते हैं। उलमा से मैं जुर्रत नहीं कर सकता हूँ कुछ कहने की, इसलिए कि जो वाक़ई उलमा हैं वो हमारी इस मशवरे और नसीहत के मोहताज नहीं हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी है, ऐसे अफराद की है जो हुसैन इब्न अली की मोहब्बत में ज़िक्र हुसैन करते हैं। तो याद रखिएगा, जब आप ज़िक्र हुसैन करने के लिए मिंबर पे आएँ तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आज़ादारी को आपको फ़रोग़ देना है, एक दूसरे की मुखालिफत मिंबरों से नहीं करना है। मिंबर को अपनी पर्सनालिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए एक ज़रिया नहीं बनाना है, दूसरे की तौहीन का सबब नहीं बनाना है। कोई किसी की बुराई ना करे मिंबर से बैठ के, किसी की तौहीन मिंबर से बैठ के ना करे। अगर मिंबर पे आने का मौका मिल गया है तो ज़माने के इमाम का, अल्लाह का, बीवी फातिमा ज़हरा का शुक्रिया अदा करते हुए इंसान मिंबर पे आने के बाद सिर्फ और सिर्फ आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल पेश करें, उनके मसाइब पेश करें और उनके पैगामात दूसरों तक पहुँचाए, तब तो मिंबर पे आने की जो जिम्मेदारी है उसे पूरा किया है। वरना इंसान रस्म के लिए मिंबर पे आ रहा है, जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है। यही अमर अंजाम देना है। नौहा खानों को भी यही काम, सोस खानों को भी करना है, यही काम सारे लोगों को जो अज़दारी के कारवां से जुड़े हुए अंजाम देना है। कुछ बातें और भी हैं, गुफ्तगू के दूसरे हिस्से में पेश करूँगा इंशाअल्लाह।